Hello, welcome to the Current Affairs Show. Today it's 29 May 2021, and here we will be discussing all the important current affairs of today. पहला न्यूज जो है वो एनसीसी से रिलेटेड है। एनसीसी स्टैंड फॉर नेशनल कैडेट कॉर्प्स, जिसकी स्थापना 16 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है, और इसका मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो पहला न्यूज इससे रिलेटेड है एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स, जिसकी स्थापना 16 अप्रैल 1948 को न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और मोटो है इसका एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ठीक है, अब हम लोग न्यूज की तरफ चलते हैं। क्या है इससे रिलेटेड न्यूज? तो हमारे जो डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार हैं, डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार, उन्होंने एक एनसीसी मोबाइल ट्रेनिंग ऐप वर्जन 2.0 लॉन्च किया है। ठीक है, एनसीसी मोबाइल ट्रेनिंग ऐप वर्जन 2.0 को किसने लॉन्च किया है? तो डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार ने। ठीक है, डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार लॉन्च डायरेक्टरेट जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प्स डीजीएनसीसी मोबाइल ट्रेनिंग ऐप 2.0 डीजी एनसीसी मोबाइल ट्रेनिंग ऐप 2.0। ठीक है, 2.0 यानी इसका सेकंड वर्जन है। ठीक है, तो किसने लॉन्च किया? तो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार ने। ठीक है, डीजी एनसीसी मोबाइल ऐप वर्जन 2.0। डिफेंस सेक्रेटरी, इस न्यूज़ से हम लोग को पता चला कि हमारे जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उनका नाम है डॉक्टर अजय कुमार। आवर होम सेक्रेटरी इज डॉक्टर अजय कुमार भल्ला। ओके, इकोनॉमिक्स अफेयर्स सेक्रेटरी इज डॉक्टर मिस्टर अजय सेठ। ओके, रेवेन्यू सेक्रेटरी is Tarun Bajaj and Finance Secretary is TV Somnathan. Cabinet Secretary is Rajiv Gauba. Hope these all points will be clear to you all. So the news related to NCC we have covered. That is, Defense Secretary Dr. Ajay Kumar has launched NCC Mobile Training App version 2.0. What is the motto of NCC? It's unity and discipline. Who is the Directorate General? It's Lieutenant General Tarun Kumar Aij. Now, here is the news related to China. China's father of hybrid rice, Yuan Longping, dies at 90. Why is this news important for us? Okay, why is the news related to Yuan Longping important for us? This is important because he was known for developing first hybrid variety rice in the year 1970. Okay, in the year 1970, he developed first hybrid variety rice. He was awarded with World Food Prize in the year 2004. Okay, he was awarded with World Food Prize in the year 2004. When we talk about World Food Prize, then we must know about this prize, which has been given in the year 2021 to Sakuntala Harak Singh. This will be important news for from our exam point of view. World Food Prize 2021 has been awarded to Sakuntala Harak Singh. Okay, this World Food Prize is also known as Nobel Prize in the field of agriculture. Okay, Nobel Prize in the field of agriculture. Some static facts about China has been mentioned over here. That is, its capital is Beijing, and in Beijing there is the headquarter of AIIB. AIIB, ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर बीजिंग के चाइना में। ठीक,
करेंसी रेनमिंबी। तो ये न्यूज़ क्लियर होगा। पिक्चर में आप देख सकते हैं युआन लोंगपिंग को, ही इज फ्रॉम चाइना। He has passed away at the age of 90. He was known for developing first hybrid variety rice. In 1970, he was awarded with World Food Prize in the year 2004. World Food Prize for the year 2021 has been given to Sakuntala Harak Singh. Okay, when we talk about the food, then we must know that on 28 May, World Hunger Day was celebrated, and the rank of India in World Hunger Index was 94th. India's rank in World Hunger Index. These are some facts. What is the rank of India in World Hunger Index? It's 94th. This question came in SBI PO mains. In SBI PO mains, it was asked question related to World Hunger Index, that which country was below India in World Hunger Index. Okay. On 28th May, what do we celebrate? It's World Hunger Index. Rank of India in World Hunger Index, it's 94th. World Hunger Day, 28th May. Okay. Who was awarded with the World Food Prize in the year 2021? It was Sakuntala Harak Singh. Where is the headquarters of AIIB? It's in Beijing, China. What is the currency of China? It's renminbi. Who is known as the father of hybrid rice? Who has passed away? He was Yuan Limping. From which country does he belong? He is from China. Here is the news related to RBI. That is, RBI has imposed a monetary penalty of rupees 10 crore on HDFC Bank Limited. Why it has fined rupees 10 crore? We must know about it. ठीक है, आरबीआई ने एचडीएफसी पे 10 करोड़ का पेनल्टी लगाया है, पर क्यों? वाई? बिकॉज एचडीएफसी ने जो है ऑटो सेक्टर से रिलेटेड कुछ प्रोविजन थे आरबीआई के, उसको फॉलो नहीं किया। ठीक है, इट इज मेंशन फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 6(2) एंड सेक्शन 8 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, these provisions are related to the automobile sector, which HDFC Bank didn't follow. That's why it was fined. It was imposed with a monetary penalty of rupees 10 crore by the RBI. RBI के बारे में तो हम लोग जानते हैं। RBI क्या है? बैंकों का बैंक इसे माना जाता है। गार्जियन भी है बैंक का, बैंक को हर सही गलत चीज के बारे में बताता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, माने गार्जियन ऑफ द बैंक। इट इज नोन एज द बैंकर्स बैंक। आरबीआई से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है, जैसे आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में, गवर्नर है इसके शक्तिकांत दास। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। एक कमेटी था, हिल्टन यंग कमेटी, जिसको बनाया गया था आरबीआई के स्थापना के लिए, हिल्टन यंग कमेटी। ठीक है, इनिशियली जो इसका कैपिटल था, हेडक्वार्टर था, वो कैलकाटा में था, लेकिन 1937 में इसे मुंबई ट्रांसफर किया गया। ठीक है, आरबीआई के अपने फैक्ट्स क्लियर होंगे। एचडीएफसी के सीईओ का नाम है शशिधर जगदीशन। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। टैगलाइन इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कल हम लोगों ने एचडीएफसी का देखा था। हम है ना ख्याल आपका, एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज इट्स ऑफ यस बैंक, India's international bank, it's Bank of Baroda. These facts are very much important from our exam point of view. We understand your world, HDFC Bank. Okay. अब जो न्यूज़ है वो एनपीसीआई से रिलेटेड है। एनपीसीआई ने भी पार्टनरशिप किया है टर्की की एक कंपनी पेकोर के साथ। ठीक है, NPCI, National Payment Corporation of India, has onboarded Turkey's global payment solutions company Paycor as one of the certified partners for RuPay. ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल से रिलेटेड पेमेंट को
इजीली अवेलेबल कराने के लिए एनपीसीआई ने टर्की ग्लोबल पेमेंट कंपनी पेकोर के साथ पार्टनरशिप किया है। पेट्रोल पंप पे ये सब जो हम लोग कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। लास्ट ईयर आरबीआई ने इसकी वैल्यू 2000 से 5000 रुपए की थी, इसकी पेमेंट लिमिट फ्रॉम 2000 रुपीज टू 5000 रुपीज। ठीक है, तो एनपीसीआई ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है? पेकोर के साथ। पेकोर कहाँ की कंपनी है? तो टर्की की। एनपीसीआई की स्थापना 2008 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ? मुंबई, महाराष्ट्र में। श्रीलंका से रिलेटेड एक न्यूज है कि श्रीलंकन पार्लियामेंट हैज पास्ड पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन बिल। एग्जाम में पूछा जा सकता है विच कंट्री हैज पास्ड द पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन बिल, then this is Sri Lanka. Let's know some static facts also about Sri Lanka. Where is its capital? It's in Sri Jayawardene Kotte. Who is the president? Gotabaya Rajapakse. Prime Minister Mahinda Rajapakse, both are brother, and currency is rupee. ठीक है, ये फैक्ट्स है कुछ श्रीलंका से रिलेटेड, इसको याद रखना है। बिल में बोलता है कि 269 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड reclaimed from the ocean and annexed to the city of Colombo as the country's first special economic zone for service-oriented industries. तो ये बिल के बारे में पॉइंट है, इसको एक बार देख लीजिएगा। हमारे लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है। पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन बिल को किस कंट्री में पास किया है? तो श्रीलंका ने पास किया है। ठीक है, श्रीलंका का फ्लैग है। कैपिटल कहाँ है? जयवर्धने पूरे कोटे। प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे। एसएससी सीजीएल में इससे रिलेटेड पूछा गया था प्री में। एसएससी सीजीएल में लास्ट ईयर पूछा गया था हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका? इट्स महिंदा राजपक्षे। कैपिटल करेंसी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे चाइना का अभी हम लोग देखे बीजिंग रेनमिंबी, श्रीलंका का देख लिया हम लोगों ने जयवर्धन पूरे कोटे और श्रीलंकन रुपी। अब हम लोग आगे चलते हैं। एमएसएमई, ठीक है, जो एमएसएमई है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, ठीक है, उनको इजीली फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, फिनटेक कंपनी जिप्लो ने पार्टनरशिप किया है इनक्रेड के साथ। ठीक है, यही इस न्यूज में बताया गया है कि फिनटेक कंपनी जिप्लो हैज entered into partnership with InCred with an aim to extend micro loans। माइक्रो लोन्स क्या है? माइक्रो लोन्स वैसे लोन है जिनका लिमिट 1 लाख से 10 लाख के बीच का है, विद टेन्योर। ठीक है, इसका टाइम पीरियड कितना होगा? 3 साल, यानी 36 मंथ्स टू एमएसएमई दैट आर अनेबल टू एक्सेस फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रॉम ट्रेडिशनल बैंकिंग प्लेयर्स। ठीक है, ऐसे एमएसएमई जिनको इजिली फाइनेंशियल सर्विस नहीं मिल पा रही थी ट्रेडिशनल बैंक से, उसके लिए जिप्लो ने इनक्रेड के साथ टाई अप किया है ताकि वो माइक्रो लोन्स उसको दे सके 1 लाख से 10 लाख के बीच में, और उसका टाइम पीरियड रहेगा 36 मंथ का। ये सब फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, 36 मंथ, 1 लाख से 10 लाख। अभी अभी संचिन संडूजा को जो है जिप्लो का हेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग बनाया गया है। एक योजना है मुद्रा योजना, जो कि इसी एमएसएमई के लिए है, जिसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, इसके तहत 3 कैटेगरी में लोन दिया जाता है, शिशु, किशोर और तरुण। ठीक है, मध्य कुछ अवार्ड है। डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू विन रुडोल्फ वी सिंगलर अवार्ड। ठीक है, क्रिस्टल अवार्ड्स कौन देता है? कौन सा सोसाइटी? तो अमेरिकन सोसाइटी फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इंडोस्कोपी द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है रुडोल्फ वी सिंगलर अवार्ड। तो किसे दिया गया है? तो डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को ये अवार्ड से नवाजा गया है। दिस इज इन द फॉर द कंट्रीब्यूशंस टू द फील्ड ऑफ इंडोस्कोपी। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि
अभी रुडोल्फ बी सिंगलर अवार्ड किसे दिया गया? तो डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को। ठीक है। कौन सा सोसाइटी ये देता है? तो अमेरिकन सोसाइटी फॉर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इंडोस्कोपी। वाई ही हैज बीन कंट्रीब्यूटेड with this award? Because of his contribution in the field of endoscopy. Let's move ahead. ये वाली न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनालिसा। मोनालिसा की पेंटिंग का नाम तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा। तो ये जो पेंटिंग है जिस म्यूजियम में रखी हुई है उसका नाम है लोवर लोवर म्यूजियम। मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो कहाँ रखी गई है? लोवर म्यूजियम में। ठीक है। ये वर्ल्ड्स बिगेस्ट म्यूजियम है और फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो। तो इससे रिलेटेड कुछ न्यूज आज हम लोग को देखने को मिला है कि फ्रांस ऑन वेडनेसडे अपॉइंटेड लॉरेंस डेस्कार्स। किसको? लॉरेंस डेस्कार्स को। ठीक है। को जो है हेड के रूप में अपॉइंट किया है लोवर म्यूजियम का। शी इज द फर्स्ट टाइम अ वुमन विल बी इन चार्ज ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट म्यूजियम मोर देन 2 सेंचुरी आफ्टर इट ओपन। मतलब इस म्यूजियम को शायद 200, 220, 228 साल पहले खोला गया था। ठीक है। लेकिन आज तक किसी भी विमेन को इसका हेड नहीं बनाया गया। लेकिन आज वेडनेसडे का न्यूज है कि लॉरेंस डेस्कार्स को इसका हेड बनाया गया है। कौन से म्यूजियम का? लोवर म्यूजियम का हेड किसे बनाया गया है? लॉरेंस डेस्कार्स को। ठीक है। ये म्यूजियम कहाँ है? तो फ्रांस में। फ्रांस में कहाँ है? तो सीन नदी के किनारे। सीन रिवर के किनारे ये लोवर म्यूजियम है जिसके हेड लॉरेंस डेस्कार्स को बनाया गया है। She is known for promoting social issues through art. She has been appointed as the new head of the Louvre Museum, the first time a woman will be in charge of the world's biggest museum. ठीक है। और फ्रांस में ही अपना फ्रांस के पेरिस में अपना FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का भी हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी का हेडक्वार्टर है। ये कुछ स्टैटिक फैक्ट्स है जिसको हम लोग को याद करना होगा। ठीक है। ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। लॉरेन डेस्कार्स। ठीक है। क्या अपॉइंट की गई है? तो हेड ऑफ द लोवर म्यूजियम विच इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट म्यूजियम। 200 से साल पहले इसको खोला गया था। मोनालिसा की पेंटिंग यही है। अब कुछ वन लाइनर हमको देख लेते हैं। ठीक है। अभी जैसे कोविड-19 चल रहा है हमारे कंट्री में, तो बिजनेस में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। तो उस चैलेंजेस को इजीली ओवरकम करने के लिए IIM इंदौर ने GIZ के साथ टाई अप किया है। IIM इंदौर collaborates with Gaze India to help business tackle post-COVID challenges। ठीक है। कोविड-19 बहुत हार्मफुल डिजास्टर्स इफेक्ट लाया है हमारे कंट्री पे। कितने बिजनेस बंद हो गए, लोग की नौकरियां चली गई। तो इसी को ओवरकम करने के लिए, इसको टैकल करने के लिए IIM इंदौर ने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है? गेज इंडिया के साथ। ठीक है। अब एक फिर से एक अवार्ड है कि अमर्त्य कुमार सेन जो कि इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है। इनको स्पेन की एक प्राइज है ऑस्ट्रियस अवार्ड से नवाजा गया है। दिस अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंस कैटेगरी। न्यूज को पढ़ लेते हैं। अमर्त्य कुमार सेन, इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड नोबल लॉरिएट, was awarded Spain's top Princess of Asturias Award in the Social Science category। ठीक है। स्पेन की बात आती है तो स्पेन का कैपिटल कहाँ है? तो यह है मैड्रिड और करेंसी क्या है? यूरो। ठीक है। करेंसी और कैपिटल हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड, करेंसी यूरो। ठीक है। तो अमर्त्य कुमार सेन को कौन सा प्राइज दिया गया है? तो ऑस्ट्रियस अवार्ड इसको दिया गया है अमर्त्य कुमार सेन को। कौन है? तो इंडियन इकोनॉमिस्ट है। किस कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता है? तो सोशल साइंस के कैटेगरी में ऑस्ट्रेलियस अवार्ड दिया जाता है। ठीक है। कौन सा कंट्री अवार्ड देता है? तो वो है स्पेन। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, करेंसी है यूरो। ठीक है। और मैड्रिड में ही वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है।
WTO का हेडक्वार्टर, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? स्पेन के मैड्रिड में। ठीक है, स्पेन की करेंसी क्या है? यूरो। ठीक है, ये सिंपल एक वन लाइनर है। पेनपा शेयरिंग हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ टिबेटन गवर्नमेंट इन एक्साइल। वन लाइनर है, इसको याद रख लीजिएगा। अब न्यूज आए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से रिलेटेड। ठीक है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से रिलेटेड एक न्यूज है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। V. Karthikeyan Pandian, an IAS officer and private secretary to Odisha Chief Minister Naveen Patnaik, was conferred President's Award by International Hockey Federation during the 47th FIH Congress। ठीक है, तो प्रेसिडेंट्स अवार्ड किसे दिया गया है FIH के द्वारा? वी कार्तिकेयन पांडे को। ये IAS ऑफिसर है और प्राइवेट सेक्रेटरी है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक के। Where is the headquarters of FIH? It is in Lausanne, Switzerland. Who is the CEO of FIH? Is Thierry Well. Who was the founder? Paul Leute। और इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई थी। ठीक है, FIH का हेडक्वार्टर लौसाने, स्विट्जरलैंड। अभी प्रेसिडेंट अवार्ड किसे दिया गया है? वी कार्तिकेयन पांडियन को। ये फैक्ट्स और लाइन्स क्लियर होंगे। ठीक है, static facts is very important from our exam point of view। FIH headquarters, it is in Lausanne, Switzerland. Who is the CEO? Thierry Well. In which year it was founded? It was on 7 January 1924. Now we are towards the end of our session. So let's recap some important appointments। ठीक है, अतनु चक्रवर्ती को 3 साल के लिए HDFC का पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया गया है। HDFC के CEO भी लोग याद किया था, शशिधर जगदीशन। हेडक्वार्टर था इसका मुंबई में और इसका टैगलाइन था दी अंडरस्टैंड योर वर्ड। तो RBI ने पार्ट टाइम चेयरमैन के तौर पे अतनु चक्रवर्ती को अपॉइंट किया गया है। नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन अपॉइंट हुई है रेखा मेनन। ठीक है, रेखा मेनन हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। ठीक है, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड के MD और CEO बना गए हैं अरुण रास्ते। अरुण रास्ते हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड बाय SEBI। ठीक है, सोनू सूद को पंजाब के एंटी कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और किम बुक्योम को साउथ कोरिया का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। ठीक है, साउथ कोरिया के कैपिटल क्या है? सियोल। और करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वोन। ठीक है, साउथ कोरिया का कैपिटल सियोल, करेंसी साउथ कोरियन वोन। ठीक है, तो 5 अपॉइंटमेंट है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। अतनु चक्रवर्ती, he is the part-time chairman of HDFC। रेखा मेनन, वुमेन चेयरपर्सन ऑफ द नेस्कॉम। अरुण रास्ते, NCDEX के MD और CEO। पंजाब के एंटी कोरोना वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम सोनू सूद। अब ये कुछ नेशनल पार्क रिलेटेड फैक्ट्स है कि विच स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क? इट्स मध्य प्रदेश एंड अंडमान निकोबार आइलैंड, दोनों में 9 है। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क which is in Jammu and Kashmir, smallest South Button National Park which is in Andaman and Nicobar। So thank you।